جسٹس اجل بھویان جے نے کچھ شرائط کے ساتھ بی جے پی ایم ایل اے ایم رگھونندن راؤ کو پیشگی ضمانت دے دی۔ درخواست گزار کے وکیل ششی کرن راؤ کے لیے پیشگی ضمانت کی درخواست کی۔ جب جج نے وکیل سے پوچھا کہ جنوری 2021 میں مقدمہ درج ہونے پر اس نے پہلے عدالت سے رجوع کیوں نہیں کیا، وکیل نے جواب دیا کہ درخواست گزار کو پہلے نہیں پکڑا گیا، لیکن ریاست کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے درخواست گزار جو کہ ایک ایم ایل اے ہیں اب گرفتاری کا خوف محسوس کر رہے۔ اس کے علاوہ ایک نچلی عدالت نے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ وکیل نے اسی جرم میں بی جے پی کے ایم پی بنڈی سنجے کو پیشگی ضمانت دینے کے آرڈر کی کاپی بھی پیش کی، جو سوریا پیٹ ضلع کے ماتمپلی پولیس اسٹیشن میں درج ہے، اور عدالت سے درخواست کی کہ درخواست گزار ایم ایل اے کو بھی یہی حکم دیا جائے۔ فاضل جج نے درخواست گزار کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ جج نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ ایم رگھونندن راؤ کی گرفتاری کی صورت میں پولیس اسے 25,000 روپے کے ذاتی مچلکے کے ساتھ 2 ضمانتوں کے ساتھ اسٹیشن ہاؤس آفیسر ماتمپلی کے اطمینان کے لیے اتنی ہی رقم کے ساتھ رہا کرے گی۔ کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم حیدرآباد کے اہلکاروں نے بہادرپورہ پولیس کے ساتھ مل کر ان 3 افراد کو گرفتار کیا جو ممنوعہ تمباکو مصنوعات اور غیر ملکی سگریٹس کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث تھے، اور ان کے قبضے سے تمام مالیت 12 لاکھ روپے کے تمباکو پروڈکٹس بھی برآمد کر لیے گئے۔ پولیس نے جن افراد کو گرفتار کیا ہے ان کی شناخت محمد مغدین عرف ایم سلیم 21 سالہ، عمران احمد ولد عبدالغفار اور محمد وسیم کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ یادو کشور اور دیگر بھی ملوث ہیں جو کہ مفرور بتائے گئے ہیں۔ پولیس اس میں ملوث اور مزید افراد کے ضمن میں کارروائی کر رہی۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کیٹیا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو جہاں اعتماد و بھروسہ پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، وہاں اشتعال انگیزی اور نفرت پھیلا رہے۔ ابتدا سے وزیر اعظم تلنگانہ سے انتقامی کارروائی کر رہے۔ ابراہیم پٹنم میں مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ابراہیم پٹنم تا ناج پور تک سڑک کی توسیع، تحصیلدار سب رجسٹرار دفاتر، سرکاری ہاسپٹل عمارت اور منی اسٹیڈیم کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ کیٹیا نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے راجیہ سبھا میں تلنگانہ تحریک کی توہین کرنے کے ریمارکس کیے ہیں جس کی وہ سخت مذمت کرتے ہیں، اور مودی اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور تلنگانہ عوام سے فوری معذرت خواہی کرے۔ ایک بار پھر MMTS فیز 2 کا کام مرکزی بجٹ کے ساتھ توازن میں ہے۔ اس بار بھی پروجیکٹ کے لیے کوئی رقم مختص نہ کر کے ریل صارفین کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس کے ساتھ مسافروں نے ریاستی حکومت اور جنوبی وسطی ریلوے سے درخواست کی ہے کہ وہ باقی کاموں کو مکمل کریں اور خدمات شروع کریں، کیونکہ اس سے میڈچل سکندرآباد اور فلک نما احمدنگر سیکشنز پر سفر کرنے والے ہزاروں مسافروں کو فائدہ پہنچے گا۔ ذرائع کے مطابق SCR نے پروجیکٹ میں شامل محکموں کو ایک داخلی خط جاری کیا ہے جس میں ان سیکشنز پر کام کی صورتحال کا مطالبہ کیا گیا۔ SCR کے ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا، فزیکل ورکس مکمل ہو چکے ہیں، لیکن ذیلی کاموں کی حالت جاننے کے لیے SCR نے ریل وکاس نگم لمیٹڈ سمیت مختلف محکموں کو داخلی خط بھیج دیا ہے۔ میڈچل سکندرآباد اور فلک نما احمدنگر سیکشنز کے درمیان جاری کاموں کی موجودہ صورتحال ایک بار جب SCR کو ان سیکشنز کی تصدیق مل جائے گی تب کاموں کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حکومت کی اسکیمات بدعنوانیوں کا شکار ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں ان اسکیمات کے آغاز کا مقصد فوت ہونے لگتا ہے اور اسکیم سے ان لوگوں کو فائدہ حاصل ہونے لگتا ہے جو ان اسکیمات کو روبہ عمل لانے کے لیے بدعنوانیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ریاست بھر میں دلت بندھو اسکیم کے آغاز کے ذریعے دلتوں کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے، اور ریاست کے تمام حلقہ جات اسمبلی میں 100 دلت خاندانوں کو فی کس 10 لاکھ روپے کی اجرائی کا عمل شروع کیا گیا۔
इस स्कीम के ऐलान के साथ ही हुकूमत ने अरकान असम्बली को इख्तियार दिया कि वो अपने हल्का असम्बली में मौजूद मुस्तहिक दलित खानदानों का इंतखाब करते हुए उन्हें इस स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में शामिल करे। लेकिन मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के हुदूद में मौजूद बेशतर हल्के जात असम्बली से इस बात की शिकायत मौसूल होने लगी है कि दलितों के लिए शुरू की गई 10 लाख रुपए की स्कीम में इस्तेफादा कुनिंदगान को महज 7 लाख हासिल हो रहे और माबाकी 3 लाख के हिस्सेदार वो अफराद हैं जो इंतखाब और कार्रवाई कर रहे। बताया जाता है कि दलित खानदानों के इंतखाब के तरीक़ेकार में शफाफियत के बजाय अपने मुफादात और स्कीम की रकूमात में अपना हिस्सा देखा जा रहा और इस स्कीम से इस्तेफादा करवाने के लिए नाम निहाद अवामी नुमाइंदों की जानिब से बाज़ाब्ता अपने हिस्से की मांग की जा रही और मुख्तलिफ जरिए से इसके हुसूल को यकीनी बनाया जा रहा। ज़राए के मुताबिक दलित खानदानों के इंतखाब के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात में अदम शफाफियत की शिकायत के साथ साथ सियासी ताल्लुक और हिस्सेदारी को काफी अहमियत दी जा रही, जिसकी वजह से मुस्तहिक दलित खानदान स्कीम के इस्तेफादा से महरूम होने लगे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने बिलारी असम्बली हल्के में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हिजाब और बुरखा पहनना हमारा हक है और ये आईनी हक है। उन्होंने कहा कि मैं क्या खाता हूँ, क्या पहनता हूँ, इसमें किसी को झांकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की ख्वातीन से कहा है कि वो हिजाब और बुरखा पहनकर वोट डालने के लिए जाएं। सदर मजलिस ने हिजाब पर तनकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी माँ क्या पहनेगी, मेरी बहन क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी, इसकी फिक्र छोड़ दीजिए। उन्होंने सवाल किया कि हमें क्या पहनना है, वो भी हम पूछ कर पहने। बैरिस्टर ओवैसी ने दो टुक अंदाज में कहा कि दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुरखा मेरा, इससे किसी को क्या करना है। वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने दावा किया है कि आइंदा 20 सालों तक केसीआर चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बरकरार रहेंगे और बीजेपी व कांग्रेस को अवाम कबूल नहीं करेंगे। जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना से मुतल्लिक़ वजीर आज़म के बयान की मज़म्मत करते हुए कहा कि वजीर आज़म ने तेलंगाना की तरक्की को रोकने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की शक्ल में तेलंगाना का ताक़ुब करने वाली शख्सियत का नाम नरेंद्र मोदी है, जो रियासत की तरक्की के बजाय उसे नुकसान पहुँचाने के दर पे है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की साजिश की जा रही। 60 सालों तक जद्दोजहद और सैकड़ों कुर्बानियों के बाद तेलंगाना की तश्कील का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ, लेकिन बीजेपी को नई रियासत पसंद नहीं। उन्होंने कहा कि 36 पार्टियों ने तेलंगाना रियासत की तायद की थी। केसीआर की मसाई के नतीजे में कौमी और इलाकाई जमातों की तायद हासिल हुई। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि वो हल्के की तरक्की के लिए लगातार मेहनत कर रहे। इसके एक हिस्से के तौर पर वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने अवामी मसाइल पर म्यूनिसिपल और रेवेन्यू अफसरान के साथ बंसीलालपेट और रामगोपालपेट डिवीजनों का दौरा किया। उन्होंने डी क्लास इलाके का दौरा किया। बंसीलालपेट डिवीजन के लोगों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने रामगोपालपेट डिवीजन में वाक़े करबला मैदान में वाक़े कब्रिस्तान का भी दौरा किया और उसमें ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने का वादा किया। वजीर ने वजाहत की कि बिजली के अलावा कमेटी हॉल जैसी बुनियादी सहूलियात भी इसमें फराहम की जाएंगी। ఇది మా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం. బట్ ఈ కబ్రస్థాన్ ఏంటంటే కొన్ని వర్క్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ప్రధానమైనటువంటి ఒక షెడ్ ఉన్నది, దాంతోపాటు ఆ ఫ్లోరింగ్, రెండోది కొన్ని వాటర్ ట్యూబ్ కనెక్షన్స్, కొంత బోర్వెల్ కానీ, రెండోది ఒక రూమ్ కానీ, దీంతో పాటు కొంత ఐలాండ్ స్లైడ్స్తో పాటు ఈ పైన కూడా ఒక రూమ్ కూడా కావాలని చెప్పారు. అవన్నీ కూడా 5-6 months ఒకటి అన్ని కంప్లీట్ చేసేస్తాం. ఎందుకంటే ఇది పవిత్రమైనటువంటి ప్లేస్. ఎందుకంటే మనిషి జీవితంలో ఓకే అన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి, బట్ అల్టిమేట్గా లాస్ట్కి వచ్చేది ఇక్కడికి. బట్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక ప్రశాంతత ఉండాలి, వచ్చే వాళ్ళకు కూడా కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి. ఆ ఫెసిలిటీస్ ఏంటంటే కొంత ముస్లిం కమ్యూనిటీ పవిత్రంగా ఏది చూసినా కానీ, ఏది చేసినప్పుడు కానీ ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి. కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇవన్నీ కూడా 5-6 months లోపల అన్నీ క్రియేట్ ఇవన్నీ ఏవైతే అవసరాలు ఉన్నాయో అవన్నీ చేసేస్తాయి.
సరే బన్సిలాల్పేటలో ఇప్పటికే మన సనత్ నగర్లో కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయల డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నాయి. దాంతోపాటు ఇప్పుడు బన్సిలాల్పేటలో मोहम्मद मोइनुद्दीन के मुताबिक आइटा तेलंगाना के सदर मोहम्मद यकीनुद्दीन ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि वो जियो 317 के मुतासरीन को राहत देने जारी किया गया जियो 21 में दी गई शराइत 5 और 8 में नरमी दे. शर्त नंबर 5 कोई एक मुलाजिम 317 से मुतासरा हो और शर्त नंबर 8 मुलाजमीन अपनी सीनियरिटी को सिफर करने के लिए इकरारनामा मुंसलिक करना. ये दो सख्त शराइत से मुलाजमीन को नुकसान पहुंच रहा. मोहम्मद अब्दुल मोइज ने हुकूमत से पुरजोर अपील की कि इन शराइत में नरमी बरतते हुए सारे मुलाजमीन की दरख्वास्त को कबूल करे और मुलाजमीन की सीनियरिटी को बरकरार रखने तभी हुकूमत के जियो 21 से खातिर ख्वाह मुलाजमीन का फायदा होगा. कोरोना वायरस तहदीदात के खात्मे के साथ ही महकमे बल्दी नज़्म नस्क की जानिब से टैंक बंड पर शुरू किए गए संडे फंडे प्रोग्राम के अहिया के सिलसिले में इक़दामात का जायजा लिया जाने लगा है और तवक्को है कि आइंदा इतवार से टैंक बंड पर संडे फंडे की शुरुआत कर दी जाएगी. मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के अलावा हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहदेदारों ने इस सिलसिले में महकमे बल्दी नज़्म नस्क के अहदेदारों से राब्ता कायम करते हुए इस प्रोग्राम के अहिया के मुतालिक मशावरत की है. बताया जाता है कि टैंक बंड पर मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम संडे फंडे के अहिया के बाद तारीखी चार मीनार के दामन में एक इतवार के वक्फे यानी 15 दिन में एक मरतबा मुनक्किद होने वाले एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम के अहिया का भी जायजा लिया जाएगा. महकमे बल्दी नज़्म नस्क के अहदेदारों ने बताया कि टैंक बंड और चार मीनार के दामन में शुरू किए गए इन तफरीही प्रोग्रामों में अवाम के बेहतरीन रद्द-ए-अमल के बाद महकमे की जानिब से इन प्रोग्राम्स में मजीद बेहतरी लाने और तफरीह के लिए पहुंचने वालों को मजीद सहूलतों की फराहमी के इक़दामात किए जा रहे थे. लेकिन कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के बाद महकमे बल्दी नज़्म नस्क ने सेहत आमा के पेश नज़र इन प्रोग्राम्स को मनसूख करने का फैसला किया था. लेकिन अब जबकि महकमे सेहत की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा चुकी है कि अब रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की तीसरी लहर खत्म होने लगी है, तो अब संडे फंडे के अलावा एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम्स को दोबारा शुरू करने का जायजा लिया जा रहा. कहीं भी जाएं, गांव या शहर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, हर जगह भिखारी भीख मांगते नजर आते हैं. चिल्लर रहने पर लोग भीख देते हैं या फिर ना होने की दलील पेश करते हुए आगे बढ़ जाते हैं. बिहार का एक 40 साला गदागर राजू पटेल बचपन से बनिया रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा, मगर आवाम की जानिब से भीख देने के लिए चिल्लर ना होने का बहाना करने पर राजू पटेल अपने स्मार्टफोन में डिजिटल वैलेट का इस्तेमाल कर रहा. जब भी वो आवाम से भीख मांगता है और आवाम की जानिब से चिल्लर ना होने का अज़्र पेश किया जाता है, तो वो आवाम की जानिब से चिल्लर ना होने का दावा करने पर QR कोड के जरिए डिजिटल भीख देने की अपील कर रहा और आवाम भी इस भिखारी को ऑनलाइन के जरिए भीख दे रहे. जब राजू पटेल से इस नए अंदाज में भीख मांगने के आइडिया के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि चिल्लर ना होने की वजह से उसे भीख नहीं मिल रही थी और वो भूखा सोने पर मजबूर था. ऑनलाइन भीख से उसको वक्त पर खाना मिल रहा और वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुकून की नींद सो रहा. ऑनलाइन भीख ने उसको जीने की एक नई राह दिखाई है. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.